this diversity comes the responsibility to preserve and promote the classical and folk arts. SPIC MACAY, Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Amongst Youth, is a non-political, nationwide, a voluntary movement founded in 1977 by Dr. Kiran Seth, Professor Emeritus at IIT Delhi, who was awarded the Padma Shri in 2009 Sangeet Natak Academy Award for his contribution to the arts. SPICMAC's intention is to enrich the quality of formal education by increasing awareness about different aspects of Indian heritage and inspiring the young mind to imbibe the values embedded in it. It seeks to inspire youth through experiencing the mysticism embodied in the rich and heterogeneous cultural tapestry of Indian and world heritage, with the hope that the beauty, grace, values, and wisdom embodied in these arts will influence their way of life and thinking and inspire one to become a better human being. A very good afternoon to everyone. I warm heartedly welcome you all for today's episode of the Great Master Series. The Great Master Series is one among many endeavors by SPIC MACAY to spread positivity and hope and provide relief to the young minds by focusing on the greatness of legendary artists who have enriched our music, art, and culture through their immense dedication and contribution. The series has provided us with an opportunity to experience a fantastic cultural heritage, discover our art and tradition, and connect with our inner selves. It has also helped us glimpse the lives and works of doyens of Indian classical art forms through live interaction with direct disciples or family members of the legendary great masters. The series, which began on 7th November 2020 by paying respectful homage to Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi on his centenary year, has streamed over 60 artists to date every Saturday from 3 to 4:30 p.m. on Zoom and YouTube. In today's episode of Great Master Series, we will be glimpsing the life of the legendary Great Master Ustad Abdul Rashid Khan. Age is just a number, as they say. Then how would you describe someone who, despite losing the ability to walk and confined to a wheelchair, still mesmerized audiences with his powerful voice? Ustad Abdul Rashid Khan was a Hindustani classical vocalist of the noted Gwalior Gharana and is counted among those Indian artists who have left an indelible impression on the country's cultural history. Born in 1908 in a family of musicians tracing their roots back to Bhairam Khan of Gwalior Gharana, Abdul Rashid Khan's vocal style belongs to the musical tradition of Mian Tansen, the great Hindustani classical music composer and singer and one of the Navaratnas at the court of Emperor Akbar. By the age of 5, Abdul Rashid Khan ji displayed a clear ear for music and began formal training under his father Chote Yusuf Khan at the age of 8. But it wasn't until he was nearly 40 that he gave his first public performance with his father. The Gurukul tradition had imbibed in him a sense of humility and the search for excellence in his craft. His versatility and repertoire include Dhamma, Dhrupad, Khayal, and Thumri. Abdul Rashid Khanji is also a prolific poet and writer using the pseudonym Rasan Pia for over 2000 compositions that have been recorded by BBC, Iraq Radio, and ITC Sangeet Research Academy, Kolkata. His performances at regional, national, and international stages have won him many awards and felicitation. He was conferred on with ITC Sangeet Research Academy Award in 1994, Sangeet Natak Academy Award in 2009, Kashishwar Ganga Award in 2003, Ras Sagar Award in 2004,
Bhuvalka Award in 2010, and Padma Bhushan in 2013. To get to know more about Ustadji, we have with us today Shri Shubham Bhattacharya. Born in 1970, Shubham had his initial talim of classical and semi-classical music from Sangeeta Chaya Chinmoy Lahiri. After the demise of Panditji, he took lessons from Pandit Shyamal Lahiri for a few years. In the year 1995, Shubhamoyji came under the tutelage of Padma Bhushan Baba Abdul Rashid Khan Sahib, the legend of Gwalior Gharana. He became a Ghandaban Shagird of Ustadji and served him for 20 years until his demise at the age of 107. Shubhamoyji is an A-grade Khayal singer of All India Radio and Doordarshan. Besides, he also performed semi-classical, tappa, thumri, dadra, ghazal, etc. Shubhamoyji has performed all over India at various prestigious conferences. He toured with his Ustadji as his vocal support throughout the country for 17 long years. He has performed at the Rashtrapati Bhavan, ITC SRA, Salt Lake Music Conference, etc. Shubhamoyji has done several workshops and solo recitals all over India for SPIC MACAY. He is also a Master of Arts in English Literature and a graduate of Urdu language and literature in academic life. I wholeheartedly welcome you, sir. Thank you. Congratulations to you all. It's a pleasure to have you on the show, sir. Now, we would like to start the interaction session with Shubhamoyji on the life of Ustad Abdul Rashid Khanji. I would like to start off with asking you your early days as a student under Guruji, sir. Sabse pehle, first of all, I would like to extend my regards and congratulate all of you for organizing this very special episode of Great Master series in remembrance of the great Ustad Padma Bhushan Baba Abdul Rashid Khan Sahab, who was not merely a great Ustad of a legendary Gharana, but also a very, very great human being, a great human being. Perhaps the best of human beings that I have ever come across. तो जब पहले वो कलकत्ता आए, ये सन 1995 की बात है. Very few people knew about him. Few people knew about the prowess, the dimensions of his gaiki in Kolkata. But जैसे जैसे वो कलकत्ते में रहते गए और प्रोग्राम्स करते गए, तो people came to know about him and about his gaiki. And in those times, I was also a student of music. I was also learning under several great gurus in Kolkata, and I came to know about him, and I attended a few programs of him, and I was naturally very attracted to his gaiki and to his performance. And I went to him for in search of knowledge, and I just wanted to have talim from him. And in the preliminary days, it was very difficult for me to have talim from him, because he was a gharanedar artist, and he hailed from a gharana which is perhaps the oldest of Indian classical music gharanas. And he used to test me in a lot of ways, whether I was able to take talim from him or not, whether I was fit to take talim.
And he used to let me undergo through various ordeals, different tests, and only after passing them with distinctions and coming out with flying colors, then he agreed to teach me. And it was a memorable time I had with him, under him, taking talim of Indian classical music. And then later on, how was your bond between you and Guruji after? Actually, he was like a father figure to me. He was not only a guru, but in every way, he was a friend, he was a philosopher, he was a guide. He used to teach me various aspects of life, how to sit in a mahfil, how to perform, how to interact with other people. So he was not only a guru, but he was a pathfinder. He was a shower of different paths through which you can attain perfection. So I used to stay at his place because I was learning in a Guru Shishya Parampara. As you know, Guru Shishya Parampara is staying with your Guru and get any kind of knowledge that he used to give to me. So I was learning under him in Guru Shishya Parampara, and we used to stay with him. We used to have dinner. We used to have lunch, and I used to serve him in different ways. I used to bathe him. I used to feed him, and then I used to teach his other disciples, and then I had my own classes, and later on, after a few years, he used to take me out in different parts of India with him for performances. And afterwards, we did a number of SPIC MACAY performances, as you all know. We went to different parts of India for SPIC MACAY concerts, SPIC MACAY workshops, and those were very memorable time I had with him. And wherever we go, wherever we spend time together, it was always a process of learning. He was always teaching me something, be it khayal bandish, be it a rag, be it ghazal, a geet, or semi-classical music, or purely light classical music. So he was always teaching me. Even on the stage when he was performing, I used to sit by his side and play the tanpura. And even on stage, he used to give me talim on how to perform, how to sing a particular bandish, how to delineate a particular rag, the various aspects of a rag. एक राग के कितने भी पहलुए होते हैं, वो सारे चीजें हमको सिखाया जाता था. और ये होता था सीना बसीना. माने being a disciple and being a student is completely different thing. You can be a student and learn many things from your master, but to be a disciple, you have to own your master. जैसे बाबा कहते थे कि जब तुम डिसाइपल बन जाओगे, जब तुम एक शिष्य बन जाओगे, तब तुम या तो तुम अपने गुरु को अपना लोगे या गुरु का हो जाओगे. Yeah. So that is a very important thing. That is a very important difference between being a student and being a disciple. So we had to become a disciple to obtain knowledge from him. And the talim was always sina basina, from his heart to our heart. And there was a nexus between him and me, always. So that is how we went on. That's so wonderful to hear, sir. I would request other participants in the meet to come forward and ask questions to Shri Shubham Bhattacharya ji. It's a one-time opportunity to get to know more about Ustad ji.
Yes, someone raised their hand. Can we Yeah, thank you. So my name Vyomesh, and thank you, Gautam. And I am very pleased to have this opportunity to discuss the lives and music of the great Ustad Abdul Rashid Khanji. So the first question, I would like to ask, ki Ustad ji was parangat in Drupad, Dhamar, Khayal, Thumri. So generally, when we take music, classical music, we generally take only like Khayal. Drupad Dhamar is just some other repertoire of that music. So what was his sadhana? How did he study this these 4 5 types of music in his in lifetime? I would like to know. एक्चुअली क्लासिकल म्यूजिक के जितने भी विधाएं हैं, आपने सही कहा कि ध्रुपद, धमार, ख्याल, ये तो these are the primary, the most important genres, most important systems of khayal gayaki. But there are other forms too which are considered to be classical, जैसे चतुरंग, त्रिबट, विष्णुपद और ख्याल नुमा, tarana. So these are lesser known systems, lesser known styles of classical music. And Baba was a Chaumukha singer, so to say. He was expert in all those forms of classical music, and he always wanted me to learn all those systems besides khayal. Khayal was, of course, the main. It was the center of our learning. It was the main thing of our learning. It was the main subject of our learning. But we started with Dhrupad actually, because Dhrupad, as we know, Dhrupad uses the pure form of raga, pure form of swara. So we started with Dhrupad, and later on he taught us how to sing Dhrupadangi Alap, and then we learned Dhamar also. And after learning Dhrupad and Dhamar, then only we shifted to Khayal. So preliminary it was Dhrupad and Dhamar that we started with. Dhrupad Dhamar हम लोगों को पहले सिखाया गया, और बाबा का जो घराना था वो भी प्रिलिमिनरी ये लोग ध्रुपद के गायक थे, क्योंकि बाबा always mentioned that he was a descendant of मियां तानसेन जी. मियां तानसेन जी के जो छोटे बेटे थे सूरत सेन साहब, उनके लिनियज से ये हैं, और ये लोग बेसिकली ध्रुपद गाते थे. मैंने बाबा को बाद में in his later years he did not perform Dhrupad or Dhamar on stage, of course, but जब वो हम लोगों को सिखाते थे घर में, when he used to teach us at his place, वो ये ध्रुपद धमार को बहुत ज्यादा महत्व देते थे. He used to give a lot of importance of Dhrupad and Dhamar, and we started with Dhrupad Dhamar. हम लोगों की जो तालीम, the तालीम we received from him, it started with Dhrupad and Dhamar. So Dhrupad and Dhamar में क्या होता है, जो सच्चा जो सुर है, जो the purity of a tone, purity of a स्वर, उसका लगाना, और एक स्वर के साथ दूसरे स्वर का जो संबंध है, और स्वर का जो the different aspects of singing a note, कर्ण, मीड और गमक, जमजमा, हाँ, ये सारी चीज वो ध्रुपद में आ जाता है. और सुर की जो सच्चाई है, the pureness of a note, ये सिर्फ ध्रुपद और ध्रुपद की तालीम से ही हो सकता है. क्योंकि एज यू नो हमारा 12 सुर तो है ही है, सारे गामा पाधानी और उसका वेरिएंट्स है, लेकिन वो जो सारे गामा पाधानी है वो हर राग में एक ही जैसा नहीं इस्तेमाल होता है. उसका जो रेशियो होता है, उसका जो टोनल डिफरेंस होता है, वो हर राग में अलग अलग हो जाता है. मिसाल के तौर पर श्री का जो ऋषभ है, मारवा का जो ऋषभ है, भैरव का जो ऋषभ है, ये तीनों राग का ऋषभ कोमल ऋषभ ही है, लेकिन ये अलग अलग है. इसका जो स्थान है, द प्लेस ऑफ दिस 3 काइंड ऑफ कोमल ऋषभ आर डिफरेंट. तो ये जो डिफरेंस है, ये सीखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो ध्रुपद धमारी है.
तो शुरू में हम लोगों को ध्रुपदंगी का आलाप सिखाया गया और घंटा भर फॉर सो मेनी आवर्स वी यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस ध्रुपदंगी का आलाप और सुर का लगाना और एक ही कॉम्बिनेशन को बार बार करना और ध्रुपद का बंदिश को गाना, ये हम लोगों को सिखाया गया। फिर बाद में आके हम लोगों को ख्याल की बंदिशें सिखाई गए, ख्याल सिखाया गया और ख्याल के साथ साथ वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक जैसे ख्याल नुमा है, त्रिवट है, चतुरंग है, विष्णुपद है, हाँ, तराना है, हाँ, फुलबंद है, ये सारे चीजें हम लोगों को सिखाया गया। Thank you. Thank you so much, sir. I would like to ask a question. I don't know if anybody else is there. Gautam, you can ask sir about his interests other than music. I think that would be something exciting for us to know. What did he like other than music? So if we can tell us. So I was about to ask that question. Like his personal interest other than music in his day-to-day life, maybe. मेरे जो म्यूजिक जो है ये बिल्कुल हमारा जो अर्ली इयर्स था, जब हम छोटे थे तभी से हमारे अपने घर में म्यूजिक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था ताकि हम म्यूजिक को लेके आगे बढ़े और एक एम्बियंस भी था। देयर वाज एन एम्बियंस ऑफ गुड म्यूजिक एंड अच्छे संगीत सुनाया जाता था घर में। तो शुरू से ही मेरे अंदर वो अच्छा म्यूजिक का जो संस्कार है वो बन गया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लिटरेचर टू एंड इन माय ओन लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज जो मेरा मातृ जुबान है, तो उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है और उसका लिटरेचर भी मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बारे में मैंने बहुत ही उसमें मैं रुचि रखता हूँ और आई हैव डन MA इन इंग्लिश लिटरेचर टू। सो उसमें तो लिटरेचर में मेरा बहुत ही इंटरेस्ट रहा। फिर बाद में मैं जाके उर्दू और पर्शियन इन दोनों लैंग्वेज में ग्रेजुएशन किया मैंने यहाँ रामकृष्ण मिशन से। और आफ्टर आई वेंट टू बाबा पद्मभूषण बाबा अब्दुल रशीद खान साहब, ये उर्दू लिटरेचर और लैंग्वेज को लेके मैंने और भी ज़्यादा इसमें मेरी दिलचस्पी बढ़ गई, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा, as I have already said, that he was not only a music guru to me, in a lot of different ways he used to teach me, और लिटरेचर में उनका भी काफ़ी दिलचस्पी थी। He was not only a singer but he was a prolific poet also. हजारों उनकी कंपोज किया हुआ बंदिशें हैं जो बंदिश ना सिर्फ पोइट्री के हिसाब से बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बेहतरीन है। वेरी वेरी रिच ट्रेडिशंस ऑफ पोइट्री ही यूज्ड टू कंपोज। सो उन्होंने मुझे गालिब भी पढ़ाया और इकबाल भी पढ़ाया। सो अलॉन्ग विथ हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जीवनानंद दास एंड अदर बंगाली पोएट्स एंड the way I completed my masters in English, I used to go through William Wordsworth, Coleridge, Byron, and later on T.S. Eliot, Yeats. इसके साथ साथ गालिब, इकबाल, मीर और ज़ौक़, ये सारी चीज़ मेरे अंदर आता गया। So I had this knack of going through literature from my early ages, and it still continues. I am a very profound reader. I used to read a lot. That's it. उस्ताद जी ने खुद भी कविताएं और राइटिंग में रसन पिया के नाम से जो काम किया, उनके बारे में बताइए। रसन पिया उनका, it was his pseudonym, उनका तखल्लुस जो था,
पेन नेम था, वो रसन पिया के नाम से वो रचना करते थे। और वो हालांकि वो खुद उर्दू लैंग्वेज में वो ग्रेजुएट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनका जो पसंदीदा जो जबान था, द लैंग्वेज इन which he used to compose his poetry was ब्रिज भाषा। ब्रिज भाषा उनका बहुत बहुत फेवरेट लैंग्वेज था, बहुत उनको बहुत प्यार था ब्रिज भाषा से। और बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे छंद, प्रबंध और बहुत सारे पद्य काव्य उन्होंने ये ब्रिज भाषा में लिखा है। और उनका एक अलग ही स्टाइल था वो ब्रिज भाषा को कंपोज करने में। अगर आप उनके बंदिशों में देखें तो आप immediately you can differentiate between other bandishes and his bandishes, because he had such a beautiful way of writing. उनके जो घराने में उनके जो फोरफादर्स थे, चांद खां साहब और मेहताब खां साहब, और उनके जो बड़े बाबा थे बड़े यूसुफ खां साहब, ये लोग भी बहुत अच्छे कंपोजर्स थे और बहुत अच्छे पोएट भी थे। उनके घराने में एक और बहुत बड़े कंपोजर थे, उनका नाम था उस्ताद उमराव खां साहब। तो उनसे भी काफी ये इम्प्रेस्ड हुए, उनका भी काफी बंदिशें मैंने सीखा उनसे, उमराव खां साहब के। तो उनका भी लिखने का जो स्टाइल था, द स्टाइल इन विच ही यूज्ड टू राइट, उसका भी असर इन पे पड़ा, बाबा पे। और he came out to be a very prolific or unique poet in Brij Bhasha. Yeah, that's great to know, sir. I wanted to ask this one particular question. Despite his age, he used to travel around the world and the country and give lot many concerts. So what's the secret behind his longevity? Like, how would he manage his time and his practice between all these concerts, and also given the fact that his old age? Actually, you know, a lot of people has asked me, and when Baba was performing, a lot of people used to come to him and ask the same question that you have just asked. How could you perform like this, like a very young man, a man of like a 50s, in his 50s, he was performing when he was 90 years of age. So he was performing like a 50 years person. Yeah. So how could? So he was to answer then that it was a charisma of nature. It was a boon of God. ईश्वर की आशीर्वाद है और ये चमत्कार है. So it was actually a charisma of nature, and the amount of sadhana, the amount of tapasya, the amount of riyaz and love and dedication that he has given to his music, we cannot even imagine. Like in his when he was 100 years of age, 101, 102, we used to go to his place in the morning, and he used to sit in his couch and smoking his hookah, and he used to riyaz, he used to perform riyaz in the old age. So we were baffled really कि how could, कैसे ये कर सकते हैं इतने ओल्ड एज में, ये कैसे उनके अंदर से ये आवाज निकल सकती है, उनके अंदर से ये. और ये जो आपने कहा कि ये बाहर भी बहुत ट्रेवल किए, तो ये उनका जो दिल में जो म्यूजिक के प्रति एक चाह थी और एक लगाव थी म्यूजिक के प्रति, और गाना गाने के लिए उनके अंदर जो एक मैं कहूँगा एक तड़प था, वो गाना चाहते थे. और वो संगीत से इतना लगाव था उनका कि दिन भर वो ऐसा ही गाते ही रहते थे, और कोई काम नहीं था उनका. सो कोई अगर उनसे कहे कि आपको यहाँ गाना है, तो वो फौरन राजी हो जाते थे. तो उनके लिए पैसा या सम्मान, इनसे ज्यादा उनके लिए ये था कि मैं गाऊं, मैं गाना चाहता हूं. आखिर वक्त तक वो यही कहते थे कि या अल्लाह, मुझे मेरा गाना मुझसे जुदा कर, मेरा गाना मुझसे मत ले.
तो ये दिस ड्राइव के I have to sing and this life I have completely given to music. पूरा जिंदगी मैंने समर्पण कर दिया म्यूजिक के लिए. और for him music was not something that which could be performed. It was like an ibadat. It was like an worship. And whenever he used to sing, he was like a sage worshipping before his idol. Yeah. And he used to say कि जब भी मैं सा लगाता हूँ तब मेरे सामने कोई नहीं रहता. मतलब ये जो ऑडियंस है या ये जो सामने कोई सुन रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है, ये सब those things did not matter to him. Yeah. So जब भी वो गाते थे तब वो कहते थे कि मेरे सामने सिर्फ मेरा ईश्वर रहता है और मैं रहता हूँ, मैं उनको सुनाता हूँ. So it was a sort of meditation for him, sort of puja for him. Yeah, his dedication and his hard work is like truly an inspiration. Inspiration, To all, really an inspiration. all of us. So I'd like to ask some instances or some unique experience with the Guru, maybe in some concerts or maybe in his house, maybe, or anywhere. Actually, उनके साथ रहना ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैंने I even still now I cherish all the moments that I have spent with him. कोई एक इंस्टेंस बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जितना मैंने उनके साथ रहा, रिंकू जी को मालूम होगी यहाँ मैडम को कि जितना टाइम मैंने उनके साथ बिताया, शायद कलकत्ते में तो जरूर कोई भी और शायद किसी ने इतना टाइम उनके साथ नहीं रहा, घर में चाहे हो या कोई भी प्रोग्राम में हो. बहुत सारे किस्से हमको याद आते हैं उनके साथ रहना. जब भी हम लोग बाहर जाते थे, whenever we traveled outside Kolkata, especially the train journeys were used to be very memorable. क्योंकि फ्लाइट में वो जाते थे तो वो डरते थे, फ्लाइट में वो थोड़ा सा टेंशन में रहते थे, फ्लाइट उनको सूट नहीं करता था. लेकिन ट्रेन में वो बहुत खुश हो जाते थे जाना, और रात भर वो सोते नहीं थे ट्रेन में. अच्छा. वो he used to stay awake और हमको भी सोने नहीं देते थे. तो वो हमको अपने सीट पे बुला लेते थे. एक सीट, the seat in which I was, मेरा जो रिजर्वेशन था वो सीट हमेशा खाली ही रहता था. So I used to come and sit in his berth. And वो सारा रात, पूरी रात मेरी तालीम होती थी. वो उसमें वो बंदिश सिखाते थे और कई गाना सिखाते थे, अपने लाइफ का तजुर्बा, द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन लाइफ वो हमको बताते थे. तो ऐसे वो मुझको तैयार किया. तो हमको एक बार याद है, वाराणसी में हम लोग जा रहे थे गाड़ी से, ट्रेन से. तो रात को ऐसे ही वो, मेरा बर्थ जो था वो अपर बर्थ में था. तो he called me down, वो लोअर बर्थ में सोते थे, तो वो she called me downstairs. तो हम नीचे आ गए, तो वो हमको तालीम देने लगे. तो रात का 12 बजा था और वो रिजर्व कंपार्टमेंट था. तो कुछ सामने के जो 2-3 पैसेंजर्स थे, वो उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट किया कि रात हो गया है, अब आप गाना गा रहे हैं, हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, we cannot sleep. तो बाबा को बहुत कष्ट हुआ. तो वो बहुत छोटे स्वर में, बहुत लोअर नोट में वो हमको फिर थोड़ा बताने लगे. तो उसके अगले रोज जब मॉर्निंग हुआ, तो वही लोग जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, तो जब मैंने उनको कहा कि ये हैं, कि ये अब्दुल रशीद खान साहब है जो आपके साथ जा रहे हैं, तो उनको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. दे फेल्ट रियली एम्बेरेस्ड. और वो आए और बाबा से माफी मांगी कि हम लोगों को गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए. एक बार और उनके एट हिज प्लेस इन एसआरए ड्यूरिंग दिस समर टाइम्स, ऐसे ही बहुत गर्मी पड़ रही थी और हम 2-3 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे बाबा के पास, और उन्होंने कहा कि
मुझसे कहा कि चलो बेटा थोड़ा सा मियां मल्हार गाओ। तो बहुत गर्मी के दिन थी, इट वॉज अ समर डे, हॉट डे, और आसमान में बादल का कोई साइन नहीं था, देयर वाज नो ट्रेस ऑफ क्लाउड, और बहुत ही गर्मी थी। तो हम लोग मल्हार गाने लगे। तो जैसे कि परहैप्स यू ऑल नो कि पुराने जमाने में जैसे मियां तानसेन जी का जो किस्सा बहुत मशहूर है कि उन्होंने मल्हार गाया और बारिश आ गई। हाँ, तो इट इज सेड दैट मल्हार गाने से बारिश आ जाती है। तो हम लोगों ने भी ऐसा सुना था, लेकिन उस रोज हम लोगों ने डायरेक्ट देखा कि he started singing malhar, and after and half an hour or so पूरा आसमान काला हो गया और it started raining, और raining heavily। तो जैसी बारिश शुरू हो गई तो he sang for 15 or 20 minutes more, and then he said कि अब बस करो, अब रहने दो। तो जैसे वो स्टॉप हो गया, उसके बाद 5 मिनट बाद सब आसमान क्लियर। तो ऐसा भी हमने देखा। So these are some very memorable moments that comes to my mind whenever I think of it. It's really great to know, sir. This is the small instances or the experience that you lived with Guruji. Really, We are just spellbound and just listening to your stories. I would request other participants to come forward and. That was very great story because we just हमने सुना ही था मल्हार से बरसात होती है। जी आज जी आपने वो कहानी बताई, बहुत अच्छा लगा सुन के। मियां तानसेन जैसे उनके बारे में कहा जाता था, हाँ, ठीक वही दृश्य रहा होगा जब उन्होंने मल्हार गाया होगा और बिल्कुल बिल्कुल। बारिश हो गई। तो वेरी ग्रेट। एक गुरु शिष्य का जो रिश्ता था आपका और उनका, लाइक वो क्या एक स्ट्रिक्ट गुरु थे या बहुत लीनियंट थे? वो रियाज कितने घंटे कराते थे और फिर वो आपके साथ बैठ के कितने घंटे आपको सिखाते थे, उसके बारे में बताएं। संगीत के मामले में, रियाज के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि इतना घंटा आपको रियाज करना ही है, ये तो उनका कहना था। स्ट्रिक्ट बहुत थे, लेकिन उन्होंने कभी हमको ये नहीं कहा कि आपको 14 घंटा 15 घंटा रियाज करना है। उन्होंने यही कहा हमसे कि भैया जहां तक आपका दिमाग चलेगा, जब तक आप थक ना जाओगे तन से और मन से, तब तक रियाज जायज है। जब आप थक जाओगे तब आप उस टाइम उसको स्टॉप करो, चाहे कि आप 10 मिनट बाद फिर से करो। लेकिन वो ये जरूर कहते थे कि रियाज जब आप दिल से करो और जब तक आप थक ना जाओ तब तक रियाज करो। और शुरू में मुझे भी ये सवाल पूछना पड़ा उनसे कि मैं कितना घंटा रियाज करूं। तो वही उन्होंने कहा था कि भैया रियाज करोगे तो अपने तन मन लगा के करो, ऐसा ना हो कि आप रियाज कर रहे हो दूसरा काम भी कर रहे हो, ऐसा नहीं। हम लोग पहले करते थे, जब हम छोटे उम्र के थे तो एक पलटा ले लिया थे, सारे सागा रे सा नी रे सा नी धा नी धा सा रे गा रे म गा रे सारे सागा रे सा नी रे गा म गा पा म गा रे म गा रे सारे सागा। ये पलटा तो मेमोराइज हो गया। अब हम ये पलटा गा रहे हैं, कुछ और भी काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या दूसरा काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। वो इसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि जो भी काम करो उसके पीछे तुम्हारा मन भी लगाना रहना चाहिए। तो चाहे आप 2 घंटा रियाज करो लेकिन मन लगा के करो, तो वो 2 घंटा आपको 10 घंटे के समान उसका फल मिलेगा आपको। तो इन द आउटसेट, शुरू में तो वो हमको सामने बैठा के रियाज करवाते थे। घर में हमको रियाज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सुबह हम चले जाते थे उनके यहाँ 9 बजे, तो वो बैठ जाते थे 10 बजे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। तो 3 घंटा 4 घंटा हम उनके सामने बैठ के रियाज करते थे। और रियाज का ये उसूल था कि एक अस्थाई अंतरा उन्होंने कह दिया हमसे कि इसको तुम समझ लो, 1 बार 2 बार कह दिया उसके बाद नहीं कहते थे। उसी को हमको गाना पड़ता था लय के साथ। वही घंटा 2 घंटा हम गाते थे उसको, और वो बैठे रहते थे अपने तकिए पे। कहीं अगर कोई गलती हो गया, वो उन्होंने
वो दिखा दिया उन्होंने कि ये गलती हुई आपको, इसको ऐसे गाओ, इसको ऐसे गाओ, लेकिन वो टोकते नहीं थे फिर बीच में। तो हम वैसे ही उनके सामने 3 घंटा 4 घंटा कंटिन्यूअस रियाज करते थे, और फिर ये आदत पड़ गई मुझे। फिर बाद में जब उनका भी क्लासेस बढ़ने लगा तो हम घर में आके तो उसी टाइम हम देते थे, 3-4 घंटा तो हम कम से कम देते ही थे शुरू में रियाज में। लेकिन वो जो उनके सामने बैठ के रियाज करना, वो एक अलग ही बात थी। और रियाज का ये उसूल भी था कि रियाज सिर्फ जो फिजिकल रियाज ऐसा ही नहीं कि ये 3 घंटा आपने रियाज कर लिया बस आपका रियाज खत्म, ऐसा नहीं है। रियाज का मतलब एक चिंतन भी होता है, एक इंट्रोस्पेक्शन भी होता है कि 3 घंटा आपने क्या किया और उसके आगे क्या करना चाहिए और क्या आज सीखा, उसके बारे में जो ही ऑलवेज आस्क्ड अस टू पॉन्डर अबाउट इट, टू थिंक अबाउट इट। तो ये जो चिंतन है, ये जो सोचना है, ये जो जहन में जो बात चलती है, वो 24 आवर्स चलनी चाहिए। एट द बैक ऑफ योर माइंड इट शुड गो ऑन। तभी आप जाके आपका रियाज का जो असर है वो दिखता है। आप जैसे एक जगह पे बैठ के आपने 3 घंटा रियाज किया, लेकिन जो चिंतन जो है उसके बारे में, वो राग रूप और बंदिश और उसका चलन और उसका भाव, वो सारे चीज वो चलना चाहिए दिमाग में, तभी जाके उस रियाज का असर हो सकता है। यही उन्होंने हम लोगों को सिखाया। It's great to know all these small subtleties in your learnings from Guruji. Yeah, Vyomesh ji. Yeah. Thank you. संगीत के जो बदलता रूप है, जैसे पंडित जी उस्ताद जी क्षमा करें, उन्होंने ध्रुपद से लेके ठुमरी सब गाया, तो जो आज एक बदलता रूप है और आज का युवा क्लासिकल मौसीकी की तरफ कितना रुझान है, उसके बारे में उनके क्या विचार थे? फिर से एक बार पूछिए, मैंने ठीक से फॉलो नहीं की, ठीक से आवाज ठीक से नहीं आई। हेलो, हाँ, एक बार फिर से हमको पूछिए सवाल। ऑडिबल नाउ? हाँ, अब ठीक। Okay, so what was his views on the changing phase of classical music? Like Ustad ji, I'm sorry. What was his views on the changing phase of classical music? अच्छा, like to youth, I mean, to the olden days of classical music and how the youth of today are practicing. Actually, the music that they used to perform in their time, उसका तो बहुत ज्यादा तब्दीली हो चुकी है। मतलब प्रेजेंट जनरेशन में बहुत चेंज हुआ है। ये वो खुद कहते थे कि उन लोगों के टाइम में जैसे वो लोग सीखते थे, जैसे वो लोग उनकी जैसे तालीम हुई, आजकल के ज़माने में वो बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली आ चुकी है, बहुत ज़्यादा चेंज आ चुकी है। और कभी कभी वो बहुत दुख भी करते थे कि आजकल के ज़माने में जो संगीत के प्रति जो संस्कार है, वो संस्कार नहीं दिखाई देते हैं जो यंग जनरेशन में। सीखते तो बहुत लोग हैं और बहुत लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन वो लोग इसको पूजा के तौर पे या इबादत के तौर पे और इसको नहीं लेते हैं। वो लोग इसके जरिए कहीं कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो ये उनको ज्यादा गवारा नहीं था। ये इसके वो बहुत खिलाफ थे। वो ये समझते थे कि क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत एक साधना है और उसको ये सदवंती है और इसको मतलब कर्तव्य ये करना बहुत जरूरी है। और इसको करने के बाद अगर कुछ तुमको मिले, जो सम्मान या जो शोहरत अगर आपको मिले, तो वो तो ऊपर वाले की देन है। हमारा जो ड्यूटी है वो करना है। तो वो हमेशा ये कहते थे और साथ साथ वो बहुत होपफुल भी थे, क्योंकि हम लोग जाते थे उनके पास और वो हम लोगों को लेके बहुत
आशा करते थे कि हम लोग आगे चल के अपने घराने का नाम हम लोग रख पाएंगे और अपने घराने का नाम रोशन करेंगे। तो वो हम लोगों पे बहुत ज्यादा होप रखते थे, और जो भी उनके पास आता था उनको वो बहुत अच्छी तरह से समझाते थे कि ये शास्त्रीय संगीत जो है ये इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, आप लोगों को इसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा और बहुत ध्यान लगा के, बहुत मन लगा के इसको करना है, रियाज करना है। हाँ, तो उनका जो व्यू था कि चेंज तो बहुत हो गया है टेक्निकली। अगर आप कहें जैसे राग रूप, एक राग जैसे वो अपने जमाने में जैसे एक राग को जिस तरीके से सीखा था, जिस तरीके से परफॉर्म करते थे, इस जमाने में आके वो उनको कुछ इस जमाने के साथ कुछ फर्क महसूस होता था। जैसे पुराने जमाने में मैंने सीखा उनसे, जो ललित जैसे एक राग होता है, तो ललित शुद्ध दैवत से वो लोग गाते थे पहले लेकिन फिर बाद में कोमल दैवत से ललित गाने लगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, फी जमाने को देखते हुए हमको भी कोमल दैवत वाली ललित गाना पड़ रहा है, लेकिन ललित का जो रूप हमने सीखा अपने पूर्वजों से वो शुद्ध दैवत वाला है। तो ऐसे वो कहते थे। और बहुत सारे राग है जो अछूत राग होते थे, जो पुराने जमाने में गाया जाता था, आजकल के जमाने में नहीं गाया जाता है। बहुत सारे ताल है जिसमें पुराने जमाने में उस्ताद और पंडितों ने गाया, इस जमाने में नहीं गाया जाता है। तो इसके बारे में वो बहुत कहते थे कि हमारे जमाने में ऐसा था, इस जमाने में नहीं होता है बेटा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, बहुत नेगेटिव उनका व्यू था, ऐसा भी नहीं। He was always hoping that के हिंदुस्तानी संगीत will come out with flying colors, कि एक दिन आएगा जब हिंदुस्तानी संगीत अपने उरूज पे फिर पहुंच जाएगा। उनके बहुत सारे इंटरव्यूज आप उठा के देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि नहीं, इस जमाने में कुछ संगीत का जो मान है वो कुछ गिरा है, लेकिन उनको यकीन है कि वो जो मान वो फिर से अपनी बुलंदी पे पहुंच जाएगी, अपनी उरूज पर जाएगी। ये उनका Yes, sir. ये था। It's good to know, sir. I guess we'll have last one question. Someone has raised their hand here. After that, we should go for the videos. Yeah, sure, sir. Sure, ma'am. Good morning, sir. I am Dhruvang and I am from Mayo College, Ajmer. I am currently in class 10th and we have 14 to 15 boys along with our music teachers watching you right now. And sir, in Mayo, we have a very prestigious institution. We have a beautiful music school. So sir, I think this is a combined question from all of us. Do you have any tips for learners at our age, as we are very early in that stage? So do you have any tips and things that we should follow? डेफिनेटली। देखो, लर्नर तो मैं भी हूँ अभी। मैं भी खुद को लर्नर ही समझता हूँ, डिसाइपल समझता हूँ। तो बाबा हमेशा कहते थे कि जब तक आप खुद को डिसाइपल समझोगे तब तक तुम मतलब कुछ सीख पाओगे। जब तुम उस्ताद बन जाओगे, गुरु बन जाओगे, तब बस खत्म सीखना। तो हमेशा ये जो सीखना है, जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आप लोगों को। परफॉर्मेंस तो अपनी जगह पे है, लेकिन सीखना कोई गुरु के सामने बैठ के बाकायदा, ये गुरुमुखी विद्या है। दिस इज अ विद्या विच कैन ओनली लर्न सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर गुरु, और गुरु के मुंह से ये आता है, वो आपके दिल पे, वो दिल के अंदर वो समाता है। तो ये जो है, ये गुरुमुखी विद्या है। ये कोई इंटरनेट से या कोई कैसेट से या रिकॉर्ड से मैंने उड़ा लिया और 10-15 बार उसको रट के हम गा दिया, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब शास्त्रीय संगीत के बारे में हम कह रहे हैं कि आप शास्त्रीय संगीत को सुन के या रट के नहीं कर सकते। वो आपको शास्त्रीय संगीत आपको गुरु के सामने बैठ के आपको करना पड़ेगा। तो आपके एज में मैं यही कहूंगा कि आप किसी गुरु के सामने, हाँ, क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता बताएंगे, गुरु के अलावा और कोई नहीं है ये रास्ता बताने वाला।
तो गुरु के सामने बैठिए और गुरु के सामने बाकायदा आप इसका तालीम लीजिए और मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई सानी नहीं है, मतलब मेहनत का कोई इसका कोई पियर ही नहीं है। तो गुरु के पास सीखना और मेहनत और गुरु से लगाओ, गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति। हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया। इसका मतलब यह है कि गुरु ही आपको रास्ता बताएंगे। तो गुरु को भगवान, साक्षात भगवान समझ के उनके हर बात पे यकीन करके और अपना रियाज ठीक ठाक करके आप इसको जारी रखिए, सीखिए, बहुत ज्यादा सीखिए। आपका जो एज है अभी सीखने का समय है, परफॉर्मेंस का टाइम बहुत आएगा। अगर आप अपने को, खुद को अगर डेवलप करेंगे, खुद को अगर मैच्योर करेंगे, खुद को अगर एक बुलंदी तक ले जाएंगे, तो वो वैसे ही आपके अंदर जो खुशबू है वो बिखरता जाएगा। लेकिन वो खुशबू पैदा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रियाज करना पड़ेगा, आपको मांझना पड़ेगा खुद को। तो गुरु को सम्मान करना, गुरु के सामने बैठ के तालीम लेना, गुरु को श्रद्धा करना और मेहनत करना, ये बहुत ही जरूरी चीज है। Thank you so much, sir, for your words. Thank you very much. For the younger generation as students and your experiences with the great Ustadji himself. We were all fortunate to listen it from you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम और सबको बहुत बहुत बधाई और बेस्ट विशेस। Thank you so much, sir. Now it's time to witness the greatness of Ustadji himself. We'll be now streaming recorded videos of Ustadji's interview and performances. नमस्कार, आदाब, शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। ये ज़मीं बनती गई, ये आसमां बनता गया, ये ज़मीं बनती गई, ये आसमां बनता गया, मैं एक कदम रखता गया और ये जहां बनता गया। ऐसे ही खूबसूरत मौसीकी रेज़ जहां को अपने हौसलों से तामीर किया हमारी आज की शख्सियत ने, गायकी की दुनिया में जिन्होंने लगभग 100 साल का सफ़र पूरा किया और आज भी अपने फ़न और रियाज में कोई कोताही नहीं बरतते। हिंदुस्तान की एक पूरी सदी के गवाह, हमारी खुशकिस्मती की शख्सियत में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब से। पैदाइश 19 अगस्त 1908, एक शताब्दी का सफ़र, चेहरे पर तजर्बे का नूर। मियाँ तानसेन के घराने से है जिनका ताल्लुक, ध्रुपद, धमार, ख्याल और ठुमरी में बसती है जिनकी रूह। गायकी के हर रंग में है जो माहिर, उस्ताद अब्दुल रशीद खान। सागर में बोले तब तेरा रोम हरि हर उस्ताद अब्दुल रशीद खान संगीत की दुनिया में एक मिसाल है। उनके काम को, अंदाज को, गायकी के अनूठेपन को सजोना एक विरासत को सजोने जैसा है। स्वर ऐसा लगाते हैं जो दिल को छू जाता है। उनसे मिलना जिंदगी को महसूस करने जैसा है। उनको सुनना मानो सुरों की नूर से आत्मा को पवित्र करना है। जिंदगी में बेपनाह संघर्ष और कठिनाइयों का दौर भी देखा अपने से आगे निकलते बहुत से कलाकारों को भी, लेकिन रियाज और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ा। जिस्म कांपता है लेकिन सुर नहीं कपकपाते,
उस्ताद अब्दुल रशीद खान एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने देखा गीत संगीत के स्वर्णिम दौर के साथ आज तक के सफर को। अपने सफर में उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। सीधी सादी तबीयत और सिर्फ संगीत और खुदा को समर्पित उस्ताद अब्दुल रशीद खान। यही है ज्ञानी, बिन गुरु ज्ञान न पाइए। उनकी बात यही है ज्ञानी, बिन गुरु ज्ञान न पाइए। बिन गुरु ज्ञान न पाइए, बिन गुरु ज्ञान यही है ज्ञानी, बिन गुरु ज्ञान न पाइए। और अपने गुरु की सेवा करो, अपने गुरु की सेवा कर, अपने गुरु की सेवा कर, जो हृदय के पट खोले तब तो तेरा हरि हर बहुत बहुत इस्तकबाल उस्ताद जी शख्सियत में आपका। आदाब। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और अपनी खुशकिस्मती पर रश्क भी हो रहा है कि आज हम आपको अपने स्टूडियो में बुला पाए। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे दू गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पुराने वक्त की ही तरफ से अपनी बातचीत की शुरुआत करें। जी बीते वक्त में बहुत खूबसूरत महफिलें हुआ करती थी जी। और अगर आज से हम 60, 70 या 100 साल पहले की बात करें तो उन महफिलों का अपना एक बड़ा मज़ा हुआ करता था। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार मौजूद होते थे जी। तो चूंकि आज आप हमारे बीच में हैं तो हमें उन महफिलों के बारे में ही बताइए, शुरुआत वहीं से करते हैं। पहले ऐसा होता था कि अब जिसे गोष्ठी कहा जाता है, हाँ पहले महफिलें होती थी। हाँ हाँ खानकाह करीमियाँ है, जी मेरा ख्याल है कि सारे हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं। जी 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 जी। वहाँ की मजलिसें, वहाँ की महफिलें ऐसी हुआ करती थी कि उस वक्त अगर कोई गायक अच्छा गाया तो 5 अशर्फियाँ उस पर रखे मिलती थी। किन किन को सुनने का शर्फ हासिल हुआ आपको अपने वक्त में, जो बहुत बड़े बड़े कलाकार थे? हम लोग तो सिर्फ नाम सुनते हैं, हम लोगों ने तो उनको कभी देखा नहीं। क्योंकि दिमाग हाजिर नहीं है, इसलिए कुछ याद पड़ता है, कुछ नहीं याद पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तभी तो आप कहते हैं कि जिस्म कमजोर हो गया, हाथ पैर रह गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आवाज को पूरा रखा माशाल्लाह से। बस ये कुदरत की देन है जी, उसकी मेहर है, मेहरबानी है जी कि हर तरीके से तो मजबूर कर दिया है, मगर अल्लाह ने कमाने खाने के लिए इतना सा ये इतनी हड्डी बचा दी। जी माशाल्लाह से बहुत सारी बंदिशें तैयार की, बहुत सारे नए राग भी बनाए। आज कुछ याद आता है हमारी ऑडियंस को? अगर आपकी आवाज सुनने को मिल जाए तो हम लोगों के लिए तो ये तबर्रुख की तरह हो जाएगा। कैसी नई ऐसी नई नवेली अलबेली सुंदर ना उस्ताद जी ये बताइए कि जो आपके बचपन के बारे में हमने सुना, आपके जो वालिद थे वो अक्सर कहते थे ये लड़का गा बजा नहीं पाएगा, लेकिन जब आपने शुरू किया तो माशाल्लाह से फिर आप लगातार 22 साल तक रियाज करते रहे।
शाम 7 से सुबह 5 बजे तक के, तो वालिद ऐसा क्यों कहते थे? असल में मदरसा खिलंडरा था, खेल कूद में ज़्यादा शौक था। हाँ। और खुसूसन कुश्ती का मुझे बहुत शौक था। अच्छा। तो मेरे वालिद बोले कि ये कुछ गाय बजाएगा नहीं। हाँ हाँ, छोड़ दो इसे, इसको छोड़ दो। हाँ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जहाँ का भी मैंने जिक्र किया है, सलोन की खानकाह का, वहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था। उसमें हमारे एक चचेरे भाई, नहीं खलेरे भाई, अच्छा, वो गा रहे थे बुबन खां। अच्छा। मुझे इतना अच्छा लगा कि पीछे में बैठा हुआ था उनके, मैं भी साथ शुरू हो गया उनके। तो उन्होंने मुझको डांट दिया कि चुप, बिस्तरा बेताला, मेरा गाना खराब करता है। वो बात भाई इतनी मुझे लगी, दिल को लग गई एकदम। दिल को इतनी लगी कि अच्छा मैं अब गा के सुनाऊंगा। फिर घर में मैंने आके अपनी वालदा से रो गा के कहा कि नहीं, अब हम गाना गाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर आपने गाना सीखना शुरू किया। तो वालिद ने आपको किस शर्त पे सिखाना शुरू किया फिर? बस ये कि अच्छा भाई तुम्हारी वालदा कहती हैं, तो मैं शुरू करा देता हूँ, तुमको शुरू करो, गाओ, देखते हैं कि तुम आगे चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। तो कुछ दिन उनसे तालीम हुई। उसके बाद मेरे बड़े बाबा उस्ताद बड़े यूसुफ खान साहब, उन्होंने मुझको, मेरी तालीम पूरी की पूरी उनसे हुई। लगभग 22 बरस तक चलता रहा। एक वाक़या बता रहा हूँ जी। यमन शुरू कराया उन्होंने मुझको। तो नेरेगा नेरेगा नेरेगा, गा रहे नेरेगा, धा नेरेगा, और गा से आगे नहीं बढ़ रहे। 3 महीने हो गए। एक रोज इत्तेफाक से किसी काम से वो उठे, तो मैंने अपने दिल में सोचा कि जरा लाओ माँ लगा के देखूं। माँ लगाई जैसे वैसे ही आ गए वो। फिर डांट पड़ी? बड़ी डांट पड़ी मुझ पे। बोले कि क्या गंधार तुम्हारी सही हो गई, निरेगा सही हो गया, जो तुमने मध्यम लगाया तो मैंने कान पकड़ा, तौबा किया, माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं होगा। तो वो ऐसी तालीम थी। ये बताइए उस्ताद जी, जो मैं आज आपकी उंगलियां देख रही हूँ, और आपके लिए कहा जाता है कि जो हम लोग जान पाए, आप उस वाकये की तस्दीक करेंगे कि जुगलबंदी का एक बहुत शानदार दौर चल रहा था। जी। और जलन और हसद ने कहीं ना कहीं आपका बड़ा बिगाड़ किया। उस वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ था जुगलबंदी का। मुझसे कहा गया कि साहब जुगलबंदी है आपकी। ठीक, एक इधर के साउथ के थे पंडित वो गजानंद राव जोशी जी, उनसे ये कहा गया। वो गाते भी थे और वायलिनिस्ट बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं गाऊंगा नहीं, वायलिन बजाऊंगा आपको। वहीं का एक लोकल आदमी तैयार हुआ, लोकल एक गायक उसी शहर का, कि मैं गाऊंगा खजाब के साथ। तो होता यह है कि जब अखाड़े में 2 पहलवान खड़े होते हैं तो एक को डिफीट होना तो जरूरी। वो इतना जल गया मुझसे, इतना जल गया कि मेरा ख्याल कि अगर उस वक्त उसके हाथ में पिस्तौल होता तो मुझे गोली मार देता। नतीजा ये, मैं उस वक्त क्योंकि यंग था और हाथ पैर सब काबू में थे, कब्जे में थे, किसी को कुछ मैंने दूसरा ये महसूस नहीं कर सकता था कि इनको कुछ किया जाए या हो सकता है इनके साथ। तो उसने जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, वो बैरे को मिलके उसने मिलाया, और मिलाने के बाद मुझे मरकरी दिया खाने में। और पारी का तो ये कायदा है बिल्कुल
कि या तो फिर हाथ पैर बेकार कर दे वो, आंख बेकार कर दे, कान बेकार कर दे, सब कुछ बेकार कर दे, और या तो फिर मार दे। दो ही सूरतें होती। अल्लाह के यहाँ से जिंदगी थी, जिंदा तो रहा, मगर और बाकी चीजें वो सब। ग्वालियर घराने से आपका जुड़ाव कैसा रहा? मुझे ये कहते शर्म आती है कि मेरा सिलसिला ग्वालियर घराने से। सिर्फ एक बात कहूँगा जी कि चेनिस्बत खाकरा बालम पाक, कहाँ वो लोग और कहाँ मैं। हालांकि सिलसिला वही है जी, सब कुछ है, हाँ। मगर अंदर से मुझे शर्मिंदगी होती है कि मैं उस घराने का हूँ, मैं उनसे मेरा ताल्लुक है जिनकी गायकी मुश्क और खतन के तरीके से है। खान साहब, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके लिए, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा आपके इस सफर पर। आइए देखते हैं। आदाब खान साहब, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके बारे में कुछ मुझे मौका मिल रहा है कुछ कहने को। आप ग्वालियर घराने के हैं, आपकी जो गायकी है वो ग्वालियर की है, सीनियर मोस्ट घराना है, वोकल घरानों में से सीनियर मोस्ट ग्वालियर का है। आपने खान साहब, आपकी मॉडेस्टी, आपकी ह्यूमिलिटी जो है, आप इतने बड़े गायक हैं लेकिन हमेशा एक ह्यूमिलिटी, एक मॉडेस्टी, तो इन चीज़ों को देखकर हमें भी एक रास्ता आपने दिखलाया। पिछली अक्टूबर में हमने बुलाया, आप कष्ट करके कलकत्ते से आ गए थे। आपने वहाँ पे जो कबीर जी के दोहे गाए, उसके बाद राम तेरा आसरा, राम तेरा आसरा जो आपने ये गाई है, ये चीज़ पूरी ऑडियंस उठ गई, आपको याद होगा, पूरी ऑडियंस स्टैंडिंग ओवेशन आपको। और बस मैं यही कह सकती हूँ खान साहब कि आपकी और लंबी उम्रें हों। उस्ताद जी नमस्कार, आपको बहुत शत प्रणाम। मैं समझता हूँ संगीत के क्षेत्र में भारतवर्ष को भगवान की आप देन है। ग्वालियर घराना जो पुरानी तानसेन की परंपराओं से ओतप्रोत है, आप आज भी उसको एक मशाल की तरह लेके चल रहे हैं। और 106 वर्ष की उम्र के बावजूद भी आपकी आवाज़ में वो जो लचक है, आवाज़ में जो गूंज है और आवाज़ में जो मिठास है, वो मैं समझता हूँ बहुत कम संगीतज्ञों में या संगीतकारों में मिलेगी। और मुझे एक और चीज़ जो ख़ास तौर से आपके बारे में मुझे प्रभावित की, वो ये कि आप हर दृष्टिकोण से एक संपूर्ण कलाकार हैं। एक तो लोग गायक होते हैं तो सिर्फ गाते हैं, आपकी बंदिशें, जिसे आप कहते हैं नायक भी हैं और गायक भी हैं, आपकी बंदिशें जो दिल को छू जाती हैं, जो चाहे वो श्रृंगार रस की हों, चाहे भक्ति रस की हों, आपका जो इन सभी क्षेत्रों में जो आपका आधिपत्य है, जो आपका हस्तक्षेप है और आपकी जानकारी है, तो मैं समझता हूँ हर दृष्टिकोण से अद्वितीय है। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए आप उस्ताद जी? ये तो उनकी मोहब्बत और शफकत और चाहत है कि जो मुझे मेरे करीब हैं, मेरे पास हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। आपसे बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे साथ हैं उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब। खान साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने कहा था कि आपको शर्मिंदगी है अगर उस घराने से आपका, ऐसा क्यों कहा आपने? वो लोग अपना गाते थे लेकिन आपने भी कुछ हद तक के उनको, उनकी उस जिसको कहते हैं ना, उसको छूने की कोशिश तो की माशाल्लाह से। असल में मुझे विरासत में कुछ मिला। मेरे परदादा जी, मेरे दादा मेहताब खान साहब जी, और मेरे परदादा चांद खान साहब, जी, जिन्होंने 4 लाख ठुमरियाँ लिखी बनाई। तो कहाँ 4 लाख और कहाँ 4-5 हज़ार, कितना फर्क हो जाता है। मगर सिलसिला वही है
ब्रज भाषा हमारी अपनी पसंदीदा ज़बान है। मुझे बहुत शौक था, तो जैसे मेरे परदादा ने लिखा जी, वो उसी ढंग से मेरी जो बंदिशें हैं, जो सुनेंगी आप वैसे ही पाएंगी। सुनाइए अच्छा एक कोई जो आपको बेहद पसंद हो। जाओ सैया हटो जाओ जाओ सैया बतियाँ बनाओ नाम से आली रैन भितरे सात घर छाए भोर ही आए नंद कुछेल जाओ सैया हटो जाओ सैया जाओ सैया। लेकिन अगर उन्होंने 4 लाख लिखी, आपने 4000 लिखी, लेकिन उस वक्त 4 लाख और आज के 4000 बहुत होते हैं। आप लोग ऐसा समझते हैं? बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही नवाजिश समझते है हैं। आप। ये बताइए उस्ताद जी कि पहला परफॉर्मेंस आपने कब दिया था? पहला परफॉर्मेंस मैंने अपने पीर के सामने, जिनसे मैं बैत हूँ, हजरत हाजी हाफिज मौलाना हजरत शाह मोहम्मद नईम अता साहब सलोनी, उनके सामने। अच्छा, अभी आप जो फिलहाल दिल्ली में आए, जी, तो मैंने ये सुना कि आपने माशाल्लाह से हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का वो कलाम पेश किया जो अमूमन लोगों ने सुना भी नहीं था। कुछ सुनाएंगे आप हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का? अगर कोई आपने कलाम अभी इस वक्त याद आ रहा हो तो कुछ 1-2 लाइन सुना दीजिए। कौन रोज के रूह आदम बबदन गुफतन दरतन दरतन दरा दरा दर आमद दरतन कौन रोज के रूह आदम बबदन गुफतन दरतन दरतन दरा दरा दर आमद दरतन कौन रोज के। आपने कहीं कहा है कि राग जो है वो कुदरत को प्रभावित करते हैं, तो कोई भी गायक जब कोई भी बंदिश या कोई भी राग पेश करे तो वो कुदरत को जरूर ख्याल में रखे। क्यों कहा था आपने ऐसा? रागों का ताल्लुक टाइम से है, वक्त से है। जैसे भैरव आप शाम को गाइए, अच्छा लगेगा। बिल्कुल, इनमें भी जान है, जिंदा है ये। तो जो वक्त होगा जिस राग का, अगर उस वक्त गाया जाएगा तो अच्छा लगेगा और भला लगेगा। आपने तो मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान का रंग भी देखा, और आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदला। जो आज़ादी से पहले था वो ठीक आज़ादी के बाद बहुत कुछ बदल गया। तो उस पीरियड की, उस वक्त की कोई किस्सा याद आता है आपको? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में एक मर्तबा कहा था जी कि हमारे यहाँ से तो ये लोग सब कुछ ले गए, मगर एक विद्या ऐसी है, संगीत ऐसी है जो अभी तक ये लोग नहीं ले पाए। और ये सही है कि अभी तक इनके गाने बजाने में वो चीज, वो बात नहीं आई, चाहे जितना भी सीखें। आपके कुछ और अपने हैं आपको जो लोग बहुत चाहते हैं, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। आइए देखते। मेरी इंटरेक्शन उस्ताद जी, उस्ताद अब्दुल राशिद खान साहब के साथ बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन मैं भी उनके बहुत सारे एडमायरर्स में से एक हूँ। उनके म्यूज़िक के एडमायरर हैं हम, और उनकी उम्र का और उनकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी के मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह का वो म्यूज़िक इस समय दुनिया को दे रहे हैं, इसकी मिसाल कहीं कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप देखिए कि उनके अपने कॉम्पोजिशंस 2000 से ऊपर तो उन्होंने खुद से कॉम्पोजिशंस लिखे हुए हैं जो वो खुद परफॉर्म करते हैं, और इतना फुल थ्रोटेड गान उनका जो गले से गान निकलता है, उनकी उम्र के हिसाब से उसके लिए तो जो कहा जाए कम है। अभी जून के महीने में वो हमारे राष्ट्रपति के सामने राष्ट्रपति भवन में परफॉर्म कर रहे हैं, और हम लोग बहुत उत्सुक हैं उनको वहाँ पे भी सुनने के लिए। एंड मे ही लिव वेरी लॉन्ग and render his music forever and ever. अस्सलाम वालेकुम।
खां साहब के बारे में मेरे दादा हैं उस्ताद अब्दुल रशीद खां साहब। वो आर्टिस्ट तो हैं ही हैं और बाकी बहुत सीधे आदमी भी हैं और बहुत उनके बारे में जितना ज़्यादा कहा जाए उतना कम है। एक बार आईटीसी संगीत रिसर्च एकेडमी में उनका परफॉर्मेंस हो रहा था, तो कुछ लोगों ने फरमाइश करी कि मल्हार गाना है, तो एकदम से उन्होंने कहा अच्छा मल्हार गाएंगे, तो मल्हार शुरू किया और 10-15 मिनट के बाद ऐसी बारिश हुई कि एसआरए में लगभग आधे से ज़्यादा पानी भर चुका था। बस मैं यही चाहूँगा कि उनको अल्लाह और लंबी उम्र दे और तंदुरुस्ती के साथ उनको और लंबी उम्र दे। क्या कहना चाहेंगे खान साहब इन लोगों के लिए? बहुत अच्छा लगा, बहुत इन लोगों की नवाजिश मेहरबानी है। चलते चलते आप आज की जो नौजवान पीढ़ी है जी, उसको क्या पैगाम देना चाहते हैं? होता यह है कि बच्चे आते हैं सीखने के लिए और वो ये चाहते हैं कि आज ही मुझको गाना आ जाए और आज ही मैं परफॉर्मेंस दूं। ये तो उनकी तबीयत है, उनका रुझान है, उनका अपना उनकी अपनी सोच है। बहरकैफ मेरा कहना यह है कि इसको और करो और खूब तरक्की दो इसको, और लगन तुम में पैदा हो, तब जाके कुछ हासिल होगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आपका वक्त था तो उसमें फिल्मी गाने जो थे वो बहुत ही क्लासिक बेस्ड हुआ करते थे, क्लासिकल संगीत उसमें बहुत होता था। कोई फिल्मी गाना आपको याद आता है आज जब यहाँ बैठे हम लोगों के साथ? तो बाबुल नैहर छूट चार कहार मिले मोरी डोलिया सजावे मोरा अपना बेगाना छूट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी, आप आज शख्सियत में आए और आपने हम लोगों को इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शख्सियत में आज फ़िलहाल इतना ही। यकीनन एक पूरी सदी को समेटने के लिए ये आधा घंटा तो मुमकिन नहीं है। एक और नए और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।
Yeah.
Wow, that was such an incredible and splendid performance. The energy and the enthusiasm in his performance were just beyond this world. Now, we have come to an end to this episode of Great Master Series. I would like to call upon Rahul to give away the vote of thanks. Hello, a very good afternoon, everyone. It was a fantastic experience getting to know so much about legendary Ustadji and to listen to his magical voice. For this, I would like to express my gratitude towards Shri Bhattacharya ji, हमें इतनी सारी कहानियां और बातें बताने के लिए. I would also like to thank Dr. Kiran Seth, founder of SPIC MACAY, for creating this excellent community, जिसके थ्रू हम इतनी सारी amazing events को experience करते हैं. I would also like to thank the SRF Foundation and Bajaj Foundation for sponsoring the event. And again, last but not the least, the whole SPIC MACAY community and volunteers and the tech team and Gautam for organizing this event so smoothly. Thank you. Once again, thank you everyone for joining in. On this note, we'll be ending today's episode of the Great Master Series. We'll be meeting you all in the next episode of Great Master Series on the same day, Saturday next week. Thank you all.